Good evening, everybody. So now let's we start this session. Today is the International Yoga Day. So I am Vikas Verma, former Assistant Advocate General, Government of Haryana, and co-chairman of All India Lawyers Forum. So today is the topic: role of yoga during this COVID-19. So today we have the guest, Justice Honorable Justice Daya Chaudhary, retired judge from the Punjab and Haryana High Court, Chandigarh. And we have another guest, Mr. Shailesh Radia, senior expert yoga teacher from the Art of Living, Bangalore Ashram. So now, first I would like to welcome Justice Daya Chaudhary, retired judge from the Punjab and Haryana High Court. So let me start the introduction of Justice Ma'am Daya Chaudhary. So may I request you, ma'am, kindly turn on your video. So we have connected with us our members. Lordship, first I would like to welcome to this session. Today is the International Yoga Day, and thank you so much for connecting with us. So may I introduce Justice Daya Chaudhary, ma'am. Justice Daya Chaudhary was born on 10th January 1959 in village Bahin of district Gurgaon. Her Lordship passed matricular examination from the Government Girls Senior Secondary School, Palwal, in the year 1974 and graduation from the uh, Government College for Women, Rohtak, in year 1978. Thereafter, she did post-graduation in English from the Kurukshetra University in the year 1980 and LLB from the Punjab University, Chandigarh, in the year 1985. She has also to her credit a postgraduate diploma in Public Management and Labour Welfare from the Punjab University, Chandigarh, and postgraduate diploma in Public Relations from the Bharatiya Vidya Bhavan. An outstanding student in her school, college, and university days, she participated and earned the distinction in the field of sports like shot put, javelin throw, discus throw, and volleyball. She also participated in an NCC and NSS also. She was enrolled as an advocate with the Bar Council for the state of the Punjab and Haryana, Chandigarh, in the year 1987 and started practice in the Punjab and Haryana High Court, Chandigarh. She mainly contracted on the civil, criminal, constitutional, service matters, revenue, MSCT, matrimonial, and labor laws, central excise and customs. She also appeared before the Supreme Court of India as well as the Central Administrative Tribunal, Chandigarh, in a number of cases. She was elected as the president of Punjab and Haryana High Court Bar Association in the year of 1999 2000 and earned the distinction of being first woman president ever elected not only in the High Court but in the whole country as well. She was also the youngest president as she earned this position at the age of 40. During her tenure as president, she was at the forefront for the cause of lawyers and had opposed the proposed amendment in the Advocates Act and Civil Procedure Code in the year 2000. She was appointed as a senior central government standing counsel by the Union of India and thereafter re-designated as the Assistant Solicitor General of India in the Punjab and Haryana High Court. She was the first woman Assistant Solicitor General of India in this High Court and remained as such till her elevation to the bench on December 5, 2007. She was designated as a senior advocate on 26 April 2007 by the Punjab and Haryana High Court in the full court meeting and had also the distinction of being the only senior designated woman lawyer at the time in the High Court. She was elevated as judge of the Punjab and Haryana High Court on the 5th December 2007 and was the first woman lawyer to be elevated from the Bar Association as High Court judge. Since her elevation,
She has been chairperson of various important committees of this court, such as Vigilance and Disciplinary Committee, Inter-District Transfer Committee, Gender Sensitization Internal Complaints Committee, High Court Legal Service Committee, Legal Aid Monitoring Committee, Indian Law Association by the Apex Court. So it is a great honor for us to have ma'am in this session. And madam had retired last month. So let's start with the lordship. So may I request to lordship to inaugurate this yoga session. So I request to Justice Daya Chaudhary ma'am kindly inaugurate this session with your speech. All right. Mr. Vinod Goyal, Chairman AILF, Mr. Vikas Verma, Co-Chairman, Mr. Abhinav Singh, President, Mr. Suvir Sidhu, National Coordinator, Mr. Shailesh Rodedia, Art of Living Expert. That is a happy day for everybody when whole country is celebrating International Yoga Day. I start with the quote of Swami Vivekananda when he says, all power is within you. You can do anything and everything. Believe in that. Do not believe that you are weak. Stand up and express the dignity within you. Stand up, be bold, be strong, take the whole responsibility on your shoulders, and know that you are the creator of your destiny. These are the words stated by Swami Vivekananda. That is the requirement of the day. The topic of today's seminar is also role of yoga during COVID-19 pandemic is challenging, relevant as well as useful to all the persons connected with us. Credit goes to, this webinar goes to All India Lawyers Forum and its organizers, Mr. Vikas Verma, and his other persons who have made all the efforts for successful completion of this program. Mr. Verma asked me yesterday only and requested for this function. The period was too short, but I could not say no to him. As on earlier occasions also he asked me, but due to one reason or the other, it could not be possible. I believe the time is fixed for everything. Mr. Shailesh Rodedia is a senior art of living expert who is the authority on the subject. Everybody would like to hear him. In the year 2014, United Nations organizations decided and declared to celebrate International Yoga Day on 21st of June every year. First, International Yoga Day was celebrated in the next year on 21st of June 2015 for the first time at Rajghat, New Delhi, which was attended by 35,989 people and 84 eminent dignitaries from other countries of the world. The program was organized by Ministry of Ayush. It was stated to be the longest class of the people. Yoga word has come from Sanskrit, which means to join or to unite. Union of body and consciousness, which helps to maintain balance in lifestyles in challenging time. This year, due to COVID-19 pandemic, it has been observed and decided to celebrate yoga at home and yoga with family. That is also the beauty of this odd time, which people say, now we are celebrating this International Yoga Day with the family. As advocates are also members of legal family. We all belong to one family. Being the former judge and the lawyer in the past as well as in the present, I am also part of that legal family. This is
the beauty of the legal profession and take the example of lawyers. They never retire. This word retiree or former is added to the other class of persons, not to the lawyers. They never retire, they never become former. Just see how beautiful this profession is. Time is challenging and critical. Every person is supposed to maintain all the precautions. A number of patients, not only in our country but other parts of the world, they are in isolation or quarantine, either in their houses or in the hospitals, to revive their or maintain their mental peace and stability. It is being done to recover their health. They are facing physical, mental, and psychological problems. Yoga is helpful in providing mental stability. Focus is on holistic health of every individual, which is the need of the hour. During this period, people are having sufficient reasonable time due to lockdown in comparison to past. They have devoted sufficient time with their family members in addition to their other activities. They have devoted much more time on their health issues, taking and preparing good food at home, and they have developed a craze for taking food outside. Is not a craze now for the time being. Many of the persons we have heard that during this period, they have started to prepare food. Not only the health consciousness is there, but environment around us has also improved. Even the lawyers are attending all the cases from one place. For example, Delhi lawyers are attending not only cases of Delhi High Court and Supreme Court, but they are attending the cases pending before district courts. Arbitration matters are being taken up from one, they are taking up all the cases while sitting at one place. They are not only attending the cases of Delhi or around nearby high courts of other states, but the matters pending in all parts of the country. According to me, the yoga is most elevated path to connect with the self and supreme spiritual knowledge which everybody is having. Original qualities of self are peace, love, truth, purity, and happiness. From the point of view of physical exercise, in the beginning, it appears to be tough and harsher, but with the passage of time, अच्छा सुनो, अब मेरे को वॉल्यूम कम करना you would definitely be stronger. In the beginning, you may not like to do the yoga or any exercise, but it will increase your strength and confidence as well. In life also, confidence and hard work are the required to achieve success. These are the two words and two good qualities, positive qualities you can say, confidence and hard work, which is required for becoming successful. If we see the lives of successful persons, it is not necessary that they are having best of everything, but they make best of everything. We normally think that when the things would be changed, we will be happy. But the truth is, if you are happy, things would automatically change. Life is just like a mirror. If you smile, then only you will appear to be smiling. Success starts from self-discipline. The longest journey of any person is the journey inside. And that can be through yoga only. It can be with the help of yoga, as connected with yoga about connecting with the happiness. If you are connected with the yoga, you are connected with yourself. And this connecting issue would be
relating to health, peace, and prosperity. It is a perfect opportunity to know about who are you, meaning thereby through yoga you can know the life from inside. It's a journey inside. Silence and smile are two powerful tools. Smile is the way to solve many problems, and silence is the way to avoid many problems. Confidence is a key to develop your personality. If you do not believe in yourself, then nobody would believe you. The successful persons do not have the best of everything, but they make best of everything. Now, with this program, the key speaker of the day who is with us will tell so many things relating to yoga. We are not the expert, and everybody must be curious to know as what Mr. Doderia would like to tell to the people. I am happy and feel proud that I am part of this webinar. Again, I feel proud and privileged to be part of this program, and I sure that by doing this program and after listening the relevant issues which are being discussed, many persons connected through this webinar will be benefited. And I assure you that in future also, if in any way my services are required, because now I am relaxed and retired, I am having sufficient time to devote my time on such issues, I would be available to you. I am in the end thankful to Mr. Vikas Verma again, and I forward my all wishes for future success of such like programs, and I think that in future also you will again invite us and Mr. Doderia. After hearing, we will be enriched, and this type of programs during such time is not only necessary but useful, and lawyers no doubt are facing difficulty in their profession because the salaried persons are getting salary, but the lawyers, they get the fee if they get cases. That is a adverse effect on the lawyers. Here also in the Punjab and Haryana High Court, even the judges contribute some amount jointly, then it was given to Bar Council. That is the belongingness of the family. That's why in the beginning I said we all belong to same family, and we should feel proud to be part of that legal family. We should have feeling of belongingness. All the young lawyers, at least, they are having already more energy, more strength, and they are having dreams for future. I hope and wish for them that they should be successful and they will get whatever they are being desiring, what they are wishing in their future. My wishes are with you. Thank you so much. Thank you so much for giving your valuable time, ma'am. Your words are important for us. So now we have another guest from the Art of Living, Bangalore, Mr. Shailesh Radia. So firstly, Bhaiya, I would like to welcome to this session, and let me introduce Shailesh Bhaiya. Mr. Shailesh is an advanced yoga expert and life coach. He works with individuals and organizations to equip them with a holistic approach to manage their overall health and wellness for both their personal and professional success. Shailesh Bhaiya's uniqueness lies in his ability to transform individuals into confident, contributing leaders through his practical guidance that can be implemented with the immediate results. Shailesh Radadia has empowered people to overcome their limitations
and has coached the numerous professionals across the industry. He has been a key enabler of the change through his coaching, interventions, and yogic consulting for the professionals. Shailesh Bhai also served as a international faculty member for the Art of Living Foundation, one of the biggest NGOs focused on the humanitarian work spanning more than 155 countries. In his work with them, he has transformed the lives of tens of thousands of people all over the world through yoga, meditation, and wellness techniques. He teaches various courses for the Art of Living Foundation, happiness workshop, advanced yoga, meditation courses, and personality development courses like DSM as well. He has also groomed and trained more than 300 teachers all across India on yoga and advanced meditation techniques. Shailesh Bhaiya is also an expert on Mudra Vigyan and advanced yogic healing techniques. In 2001, within 5 days, he has done mega workshops for 7,000 people in the state of Gujarat. He also occupies a senior position in the NGO and is the state teacher coordinator and manages the administration and the community service activities for the organization. Shailesh Bhaiya has specialization in training of volunteers for the organization and trains people through various volunteer training programs as well. During the last 2 years in this pandemic, Shailesh Bhaiya has also taken up the national level project for the farmers upliftment in various states in India. Under this initiative, he has been continuously working on oxygen and water conservation along with the bamboo plantation in the border areas. He also trained farmers on the chemical and pesticide free farming and has continuously worked on the nation building and youth empowerment projects. So may I request to Shailesh Bhaiya kindly start your speech on the yoga session, and we celebrate the International Yoga Day. So now may I request to Shailesh Bhaiya. जय गुरुदेव। योग का जो अर्थ है बहुत बड़ा है, लेकिन एक शाब्दिक छोटा सा अर्थ में कहे कि यूनियन, मिलन। लेकिन किसका कहाँ मिलन हो, तो ये हमारा मन है, ये विषय वस्तुओं से बाहर घूमता है और वो घूमते घूमते अंदर चला जाए, जो अंदर सुख का अनुभव करता है और अंदर वो ठहर जाए, रेस्ट में आ जाए और मन उस एनर्जी के साथ मिल जाए जहां मन में कोई थॉट प्रोसेस ना हो, कोई भाव ना हो, और वो जो यूनियन बनता है, इसी को योग कहते हैं। यानी खुद के साथ शादी, छोटा वर्ड है ये। जैसे हम मन से बाहर की दुनिया में ही रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम वियोग और भोग में पड़े रहते हैं। तो योग यानी अंदर की यात्रा है। तो एक छोटी सी घटना मैंने 97 में सुनी थी आर्ट ऑफ लिविंग से, और उनसे रिलेटेड और मैं 7 चीजों पे फोकस करना शुरू किया। तो आज हमारी यात्रा 22-23 साल हो गई है आर्ट ऑफ लिविंग में एज अ टीचर, और कभी हम दुखी नहीं हुए हैं। और तनाव आया तो एकदम तुरंत हल्का कैसे हो गया, कोई भाव उठा तो उससे कैसे फ्री हो गए। तो ये जो शार्पनेस है, ये हमें योग सिखाती है। योग से हमारी बुद्धि शुद्ध होती है, हमारा मन ठहर जाता है, हमारी मेमोरी में जो भी इसको तनाव को कचरा कहते हैं वो निकल जाता है। अहंकार बहुत बारीकी से जुड़ता है, वो अंदर सेल्फ के साथ जुड़ जाता है और एक एनलाइटन की भांति वो अनुभव कराता है। उस अनुभव को ही हम सच्चा दर्शन कहते हैं और उस टेक्निक को ही हम मेडिटेशन कहते हैं। तो आज हम वो 7 चीज जो मैंने सुनी थी वो सबको प्यारी लगेगी और सब इम्प्लीमेंट करोगे। तो मैं चाहता हूं कि आप भी अभ्यास से कभी दुखी नहीं होंगे। और योग का मतलब ही है कि
हेयम दुखम अहम, आने वाला दुख पहले से ही दुख रहित हो जाए, यानी आए ही नहीं, भविष्य में आने वाला हो और पुराना हो, उससे हम फ्री कैसे हो। तो सबसे पहला क्या है, हमारे जीवन में अस्तित्व आता है हमारे शरीर से। ये शरीर ऐसी चीज है जो हमारी अपनी ओन खुद की परमात्मा ने दी हुई गिफ्ट होती है। अब ये जो शरीर है उसको हमें ठीक रखना चाहिए। तो कहते हैं ये ठीक कैसे रह पाएगा भाई, इसका ये कलयुग में 3 तरीका है। हम योग को व्यायाम के रूप में नहीं लेंगे, योग बड़ा शब्द है, व्यायाम से भी ऊपर का है। तो कहते हैं शरीर को ठीक रखने के लिए एक शारीरिक व्यायाम एक्सरसाइज जरूरी है। चाहे आप जिम में चले जाओ, चाहे आप योगा कर लो, चाहे आप एक्सरसाइज कर लो, चाहे आप स्विमिंग कर लो, तो उससे क्या है, बॉडी का अलाइनमेंट और बॉडी का वर्किंग ठीक रहता है। ये पहला स्तोत्र है। तो हम आर्ट ऑफ लिविंग में ये ऑफर भी करते हैं कि भाई हमारा आर्ट ऑफ लिविंग में श्री योगा करो, तो इससे क्या है, बॉडी का एक अलाइनमेंट आपको बेसिकली मिल जाए। दूसरा है हमारा प्राण और तीसरा है हमारी प्रकृति, ये भी ठीक हो जाए तो हमारा शरीर ठीक रहने की संभावना है। अब ये प्रकृति कैसे ठीक रहे भाई, नेचर। तो भाई कहते हैं हम एक ही मटके का पानी पीते हैं, एक ही तरह का भोजन खाते हैं, तो भी 3-4 महीने में कोई ना कोई घर में एक जरूर बीमार पड़ जाता है। उसका कारण क्या है कि भाई एक ही चीज है कि हमने ये शरीर का जो ढांचा है, अलग अलग शरीर रह रहे घर में, उसका ढांचा हमने जाना नहीं है। इस ढांचे को जानना, इसी को कहते हैं प्रकृति। बेसिकली शरीर बना है वात पित्त और कफ से। अगर इंग्लिश में कहा जाए तो सोडियम, ग्लूकोज और साइट्रस से, और उसके अपलिफ्टमेंट से हमारे शरीर में प्लस और माइनस डिसीज पैदा होते हैं। यानी पहले नेचर होता है, नेचर प्रकृति होती है, प्रकृति विकृति बनी तो फिर डिजीज आना शुरू हो जाता है। तो कहते हैं उसका भी कैसे आप संतुलन करोगे, तो भाई कोई एक आपके पास प्रॉपर गाइडेंस देने वाला नाड़ी वैद्य होना चाहिए सबके पास। अगर नहीं है तो यहाँ पे उपलब्धि है। तो गुरुदेव 365 दिन में से 200 शहर घूमते हैं, टनाटन टन रहते हैं। कृपा से मैं 250 शहर दिन बाहर रहता हूँ, तो भी हम लोग टनाटन टन। तो कैसे ये मेंटेन कर पाए? अगर हमको यहाँ से 250 किलोमीटर जाके वापस आना हो तो हमारा शरीर तो रेंग जाता है, तो उस शरीर को, एनर्जी को कैसे मेंटेन करें? तो कहते हैं प्रकृति। प्रकृति कैसे डिफाइन होती है? जैसे वातावरण चेंज होता है, हमारे शरीर में कहीं ना कहीं बदलाव आता है। अब वातावरण चेंज कैसे होता है? कहते हैं चंद्रमा स्थान चेंज करता है, उसके असर पृथ्वी पे बनती है, पृथ्वी पे खाया हुआ अन्न हम खाते हैं जिससे ये शरीर बना है, और वहां पे ये चेंजेस आने लगते हैं। तो इस चेंजेस को कैसे भाई ठीक किया जाए? तो भाई आप एक बार अपने आप के डॉक्टर बन जाओ, फिर घर में ही सारा इलाज मिल जाएगा। दूसरा है नेचर, तीसरा है प्राणा। ये प्राणा रहा तो ही शरीर ठीक रहेगा। कहते हैं 5 प्रकार का प्राण होता है इस शरीर में, चलाने वाले में, ढांचे में। एक होता है इनटेक प्राणा, इसी को कहते हैं प्राण वायु, इसी को कहते हैं प्राण वायु। जो बाहर निकलने वाला होता है प्राण, इसको कहते हैं अपान वायु। हम खाना तो खा लिए, पेट में चला गया, अब पेट में अलग अलग भागों में उसको विभाजन करना है, तो इसको कहते हैं समान वायु। और अब विभाजन हो गया तो उसको अलग अलग शरीर में अलग अलग जगह पे पहुंचाना है, तो उसको कहते हैं व्यान वायु। फिर हमारे हार्ट के साथ कुछ बैलेंसिंग होता है, इमोशंस के साथ, भावनात्मक किया, क्योंकि हार्ट भाव से जुड़ा होता है, तो कहते हैं उसको कहते हैं उदान वायु। अब ये 5 प्राण बैलेंस करना जिसको आ गया, उसका शरीर क्रॉनिक डिसीज में से निकल जाएगा। योगा फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप नेचर, और तीसरा स्टेप से वायु। तो आर्ट ऑफ लिविंग में एक बहुत बढ़िया जो हमने 97 में सीखा था, सुदर्शन क्रिया कराते हैं। वो सुदर्शन क्रिया क्या करती है? 5 प्राण को एक ही लय में ला के ठीक कर देती है। तो पूरे दिन में जो अप्स एंड डाउन होता है वो पहले से ही रिलीज हो जाता है, तो फिर हमें वो मौका नहीं मिलता है कि हम कुछ शरीर बीमार हो। ठीक है, अगर बीमार हो भी गया तो उसका जल्दी रिलीजिंग हो जाए। तो ये पहला है हमारा शरीर। सब लोग अपने शरीर को सम्मान करो, शरीर देने वाले माता पिता को सम्मान करो। ये सम्मान
योग का दूसरा नाम है सम्मान। जिस चीज से आप सम्मान करते हो वहां से आपका एक स्तर उठ जाता है। अब देखना, व्यक्ति को सम्मान कर दिया तो आपका एक स्टेप उठ जाता है। वस्तु को आपने सम्मान से दे दिया, इसी को जीवन में कहते हैं भक्ति। आपके जीवन में भक्ति आ जाएगी। दूसरा स्टेप से हमारा सांस, प्राण और सांस दोनों अलग अलग है और लेकिन जुड़ा एक से है। कहते हैं सांस की लय एक बाहर भी है, अब अंदर आ गई, यानी बाहर के वातावरण को शरीर जोड़ रहा है और ये अंदर के जो सारे वातावरण को है सांस जोड़ रहा है। सांस के साथ अब कौन कौन से रिलेटेड है? कहते हैं सांस को जानोगे ना तो जीवन में आप लाइफ को जान लोगे, क्योंकि सांस इस दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल टूल्स है। और ऐसा समझो कि जिसको आप पसंद करते हो उसके आपके अंदर गुण आते हैं। कोई हीरो को पसंद करो, कोई हीरोइन को पसंद करो, यानी जिसको आप पसंद करने लगते हो ऐसे थोड़ी देर में आपके अंदर वो गुण समाने लगते हैं। उसकी तरह आप कपड़े बदलने लगते हो, यानी उसका ढांचा चेंज करने लगते हो। तो कहते हैं कि सांस को अगर आपने पसंद कर लिया तो पूरी दुनिया चलाने का पावर भी आ सकता है। ये बहुत ही सूक्ष्म बात है और बहुत बड़ी बात है। तो हमारा ध्यान कहाँ है? सांस पे नहीं है। मैं अभी आपको बात कर रहा हूं, अगर आपका ध्यान सांस पे चला गया तो योग घटित अभी हो सकता है, मन शांत अभी हो सकता है, लेकिन हमारा मन पीछे कुछ ना कुछ चला रहता है, पीछे पीछे। तो ये वर्तमान में लाने की टेक्निक है, ये सांस है। और सांस के जरिए अनुभव करता जुड़ा हुआ है। अनुभव कौन करता है भाई? हमारा मन करता है। अगर मैं आपको बोल रहा हूं लेकिन आप कान शरीर जरूर सुन रहा है, लेकिन अगर उसके पीछे मन नहीं होता तो आपको ये शब्द सुनाई नहीं देगा। आंखें जरूर कैमरे के पास है लेकिन मन नहीं होगा तो आंखें देख नहीं पाएगी। सूंघने की कला, टेस्ट भी कौन करता है? मन करता है। तो ये हर अनुभव करता कौन है? मन है। और मन कहाँ रहता है भाई? वो घूमता रहता है, बाहर रहता है। और कहाँ बाहर रहता है भाई? उस समय के साथ नहीं जुड़ता है, या तो समय से आगे चला जाता है या समय के पीछे चला जाता है। कहते हैं यादों में रहता है भूतकाल में, या तो ख्वाबों में रहता है। ये दो जगह पे मन रहता है। अब इस मन को वर्तमान में कैसे लाया जाए? कहते हैं यादों में जब मन रहता है तो स्वर्ग था ये प्रतीत कराता है वर्तमान में। ख्वाबों में रहता है स्वर्ग बनाएंगे, ये प्रतीत के जरिए हम चक्कर लगाते रहते हैं, भागते रहते हैं। तो कहते हैं एक स्वर्ग यहाँ पे भी है जहां तुम बैठे हो। अब बैठे हो, वो स्वर्ग की प्राप्ति कब हो? कि भाई मन वर्तमान में आ जाए। इसलिए गुरुदेव ने आर्ट ऑफ लिविंग में एक सूत्र दिया, लिव इन प्रेजेंट मोमेंट। लेकिन कैसे? भाई उसका एक ही लय है कि जो चीज वर्तमान में चलती है अगर आप उसके साथ जुड़ जाओ तो मन वर्तमान में आ जाएगा। मान लो आपको कहीं दिल्ली से आपको गाजियाबाद जाना है तो आपको एक उसका सहारा लेना पड़ेगा, गाड़ी का। तो गाड़ी जाएगी तो आप पहुंच जाओगे गाजियाबाद। लेकिन अगर मन को आपको वर्तमान में लाना है तो वो गाड़ी कौन सी है भाई? आपकी ब्रेथ है जो हमेशा इस पल में चलती है, कल में नहीं चलती, इस पल में चलती है। तो भाई मन को सांस के साथ जोड़ो। जो जोड़ शब्द है वो योग है। ऐसे एक कला आ गई, इसी को आर्ट कहते हैं। अब कैसे जोड़ेंगे? तो अलग अलग उसकी टेक्निक्स है, वो हमें सीखें। जितना हम सांस के ऊपर अभ्यास करेंगे मन उतना वर्तमान में आने लगेगा। तो कहते हैं नो योर ब्रेथ, नो योर लाइफ, ये सूत्र है। अब ये मन जो अनुभव करता है वो यहाँ पे स्टोर होता है। यहाँ पे क्या है? हमारा दिमाग है, बुद्धि है। तो बुद्धि भी कैसी होनी चाहिए भाई? बुद्धि भी शार्प होनी चाहिए, सूक्ष्म होनी चाहिए, दीर्घ काल का सोचने वाली होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म सुख लेने वाली नहीं होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म दुख है। तो ये कैसे संभव है? तो कहते हैं हमारे शिव जी ने पार्वती को, एक गुरुदेव बताते हैं शिव सूत्र में, शिव जी ने पार्वती को एक ज्ञान दिया था
कि भाई बुद्धि दो प्रकार की होती है, एक होती है पॉजिटिव प्योर और एक होती है नेगेटिव। कहते हैं शुद्ध और अशुद्ध। अशुद्धता कभी शुद्धता से बड़ी नहीं होती है। तो अगर हमारा मन और दृष्टि, कपड़े में अगर दाग गिर जाता है तो वहां दाग पे ठहर जाती है, तो कहते हैं दाग पे देखना, इसी को अशुद्ध बुद्धि वाला इंसान कहता है। वो क्या होता है फिर, वो हर एक व्यक्ति में देखने लगेगा, जो कि आपका तो पेशा है वो है, तो पेशा अलग अभी सिस्टम में कर दो, लेकिन अगर आप ये अशुद्धता देखोगे तो मन वहीं पे अटक जाएगा। उसकी वजह से हम परिवार में प्रेम खो देते हैं, समाज में प्रेम खो देते हैं, सम्मान खो देते हैं। तो ये कैसे, इसको कैसे नाथा जाए, तो शास्त्रों में इसी का एक उपाय बताए, भाई प्राणायाम करो, भाई क्रिया करो, उससे ये सार्थ में सट जाती है। और जैसे सार्थ में सट जाती, बुद्धि प्योर होने लगती है। और आप देखना, ये दाग देखने की प्रक्रिया हमारे जीवन से निकल जाए तो पूरा जीवन, ये संसार बहुत अच्छा और बेदाग है, ये आप समझ लें। ठीक है, तो दूसरा, ये बुद्धि अगर दिमाग में यहाँ पे इकट्ठा करती है, निर्णय लेती है, वो यहाँ पे इकट्ठा होता है, इसी को कहते हैं मेमोरी। इसी को कहते हैं मेमोरी। अब मेमोरी में क्या क्या है भाई, हर तरह के एक्सपीरियंस यहाँ पे जमा है, हर तरह के एक्सपीरियंस जमा है। और ये एक्सपीरियंस क्या है, तरंगों के रूप में। आप मोबाइल की कोई भी मेमोरी चिप आप ले लो या पेन ड्राइव ले लो, पेन ड्राइव को तोड़ोगे तो उसमें से कुछ मिलने वाला नहीं है। जब तक उसको कनेक्शन नहीं करोगे, अर्थिंग नहीं करोगे लैपटॉप के साथ, तब तक वो खुलने वाला नहीं है, नंबर 1। तो ये कैसे, ये मेमोरी में अभी तक हमने जितने भी दृश्य देखे हैं, जितने भी कानों से सुने हैं, या मन से जितने भी हमने टेस्ट किए हैं, वो अच्छे हैं बुरे हैं, ये सारे अनुभव यहाँ पे इकट्ठा है। और वो तरंगों के रूप में है, वाइब्रेशन के रूप में है। कभी कभी आप देखना, हीरो हीरोइन को आप झगड़ा करते हुए देखते हो, फिर हीरो आगे चला जाता है गाड़ी में और उसके ऊपर एक से दृश्य दिखाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो ठोक देता है। ये डिस्टर्बेंस, ये जो तनाव है, ये जो वाइब्रेशंस है, चाहे वो अच्छे भी हो, अच्छे आपको दौड़ाते हैं राग, और फिर वहीं पे आदत बनने लगती है, तो वो भी आपको हैरान करते हैं। और बुरे जो है वो तो हैरान करते ही करते। इसी को कचरा कहते हैं, इसको तनाव कहते हैं। अब योग का काम क्या है, ये जो कचरा वाइब्रेशन पड़े हुए उसको नलीफाई करना, साफ करना। अब ये चित्त की सफाई कैसे होती है, तो उसका एक ही उपाय है। जैसे बीमार शरीर पड़ता है तो उसका उपाय मेडिसिन है, इसी तरह ये जो चित्त बीमार हो गया उसका उपाय एक ही है भाई, मेडिटेशन। लोग मेडिटेशन में बैठ नहीं पाते, क्यों? कि बहुत विचार चलते हैं, ये एक जगह पे बैठ नहीं पाते, आंख बंद नहीं कर पाते, इतना आंधी तूफान चल रहा है। लेकिन इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आज मैं आपको एक सीक्रेट बता देता हूँ, कचरा पड़ा हुआ हो तो उसमें बदबू आएगी, कचरे को थोड़ा अटेंशन ज्यादा दोगे, हिलाओगे तो ज्यादा बदबू आएगी। इसी तरह हमारे मेमोरी में ऑलरेडी कचरा पड़ा हुआ है, और वही विचारों की उत्पत्ति का स्थान है। और उसको, इस विचारों को जितना ज्यादा अटेंशन देते हैं तो वो ज्यादा हमारा दामन नहीं छोड़ता, वो फिर और हमें तकलीफ देता है। और उसको रजिस्ट न करे, उसको हवा के साथ बहने देने से। तो जब आंख बंद करते हैं तो बहते हैं, धीरे धीरे निकल जाता है। और यही ये मेडिटेशन हम लोग सिखाते हैं। ये मेडिटेशन अलग अलग कोर्स के रूप में, भाग के रूप में आपको 3 दिन सीखना है, 2-2 घंटा 3 दिन सीखना है, सुदर्शन क्रिया सीखना है। तो अलग अलग कोर्स में गुरुजी ने ये दिया हुआ है, और इससे ये प्योरिटी आती है। और योग का अर्थ क्या है, चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त में जो ये विचार पड़े हैं, विचार से हमारे आदत पड़ी है, संस्कार पड़े, उसको नलीफाई करो। तो ये जो बर्तन है वो क्लीन हो जाता है, ये मल है वो निकल जाता है। इस मल निकल जाते ही उस स्थान को कमल कहते हैं, और जहां कमल है वहीं पे लक्ष्मी जी विराजमान होती हैं, नारायण उसको पसंद करने लगते हैं। तो वहां से और आगे जाते हैं तो एक सूक्ष्म स्तर है, वो है अहंकार का, जो हमारी एक लिमिट बना के बैठा है हम लोग।
अंदर लिमिट है। बाहर चलता है तो बाहर दौड़ाता है, अंदर चला गया तो वो जुड़ने नहीं देता है, क्योंकि मन में काफी चीज है, बुद्धि में काफी चीज है। कहीं शरीर की हमने लिमिट बनाई है, कहीं मानसिक लिमिट बनाई है, कहीं बौद्धिक लिमिट बनाई। ये तीनों लिमिट को जब हम पार करके अंदर सॉल के साथ ये अहंकार जुड़ गया, एक एनलाइटनमेंट के बाद सेल्फ डेवलपमेंट करने की जरूरत नहीं, वो सेल्फ के साथ जुड़ा तो पूरा डेवलप हुआ, वो अंदर प्रकाश बैठा है। वो प्रकाश का अनुभव करना, इसी को दर्शन कहते हैं, इसी को सुदर्शन कहते हैं। इसीलिए क्रिया में हम पहला स्टेप सिखाते हैं सुदर्शन। अंदर एक प्योरिटी है और कॉन्शियसनेस को, मन को जोड़ो। तो ये तार है सूक्ष्म अहंकार। तो सारी लिमिट तोड़नी है, और लिमिट तोड़ना इसी को पतंजलि योग सूत्र में कहा है ब्रह्मचर्य। हर तरह की लिमिट तोड़ो। जब तक आप लिमिट तोड़ोगे नहीं, तब तक आप लिमिटलेस यात्रा नहीं कर पाओगे। हर तरह की, मान लो शारीरिक, कहीं ने अपना ढांचा बना दिया शारीरिक का, वो तोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि मन पेन लेना नहीं चाहता है, पेन से भागना चाहता है। और जब तक आप पेन लोगे नहीं, आपको उसके बाद जो रिजल्ट आने वाला है वो मिलेगा नहीं। यानी कहते हैं पेन इज इक्वल टू गेन, मोर पेन मोर गेन। तो फिर सेल्फ के साथ जुड़ो। तो ये सेल्फ के साथ जुड़ना, इसी को कहते हैं योग। अब ये कैसे जुड़ेंगे? तो जुड़ना चाहोगे सब लोग? प्रैक्टिस। अब ये हमने सुना, अब इसी को हम प्रैक्टिस करें, 5-7 मिनट प्रैक्टिस करें। फिर ऐसा है तो हम ध्यान करेंगे 5-7 मिनट, अगर आप अलाउ करो तो। हमारे पास टाइम है वैसे, तो आपकी अनुमति चाहिए। Yes, sir. प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बिना प्रैक्टिस ध्यान भी नहीं होगा, है ना। 5-7 मिनट एक ऐसे वाइब्रेशन लेंगे हम जीवन के। मैं आपको एक सीक्रेट बता दूं और भी, क्योंकि उस टाइम पे नहीं बताऊंगा, उस टाइम पे सीधा आपको ढालूंगा। एक चीज समझो, ये शब्द जो है ये अंदर जाता है, तो शरीर, चमड़ी के पीछे पानी है। हमारा ढांचा 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी यानी हड्डी, चमड़ी हो गई। दूसरा जल, 70% जल है। तीसरा अग्नि, जिससे हमारी क्रियाएं चलती है, धड़कन धड़क रही है, ये करती है, पेट में खाना पच रहा है, खून बह रहा है, ये अग्नि है। चौथा वायु, ये सांस है। और 5वां है आकाश, जिसमें ये सब घेरे में बंधे हुए हैं, ये आकाश। यानी ये 5 तत्व को भी बैलेंस करने को जिनको आ गया ना, उसका शरीर भी निरोगी रह सकता है। ये 5 तत्वों पे अटेंशन आना, इसी को योग कहते हैं। जैसे ही योग होता है, फिर आपको उसका रिटेंशन और मैनिफेस्टेशन मिलता है। जब तक अटेंशन नहीं होता, तो फिर वो रिटेन नहीं मिलता। तो मन को हमेशा एक फोकस रखना है। तो ये हम शब्द बोलेंगे तो आपके कान के थ्रू वो जल, पानी को टच करेंगे। अभी कोई भी शब्द टच करते, कोई गधा बोलता है तो अंदर से क्रोध आता है, ये भाव उठते हैं ऐसे। तो ये जो अंदर से, अगर हमारे अंदर ये शब्द की इतनी ताकत है, तो कहते हैं संस्कृत के शब्द बहुत ताकत वाले होते हैं और बहुत चार्जिंग ध्वनि होते हैं। वो हमारे शरीर में ये जो पानी बहता है ना, उसको चार्ज करते रहते हैं। संस्कृत में बहुत शब्द में ताकत है। तो हम जब श्लोक बोलेंगे ना, तब वो संस्कृत के शब्द की ताकत को हम महसूस करेंगे। और 7-8 मिनट में ये पानी पूरा का पूरा घूम जाएगा, चार्जिंग होगा। अब कोई भी चार्ज होता है तो उसका दूसरा इफेक्ट होता है, रिवर्स इफेक्ट, डिस्चार्ज होता है। तो डिस्चार्ज क्या होगा भाई? हमने हमारी जो तनाव इकट्ठी की होगी, शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, बौद्धिक रूप में, वो नलीफाई होती जाएगी और अंदर एक सुकून, आनंद का बैठता जाएगा। अंदर आनंद आता है। जो आंख बंद करके खोलेंगे ना, फिर आंख खोलेंगे, इतना आनंद आएगा, ऐसा लगेगा कि यार हम कहीं और धरती पे चले गए। इतना आपको मन पिघल जाएगा। तो ये जो मन को पिघलने की कला, ये है। अभी हम योगा तो आप देख लेना, मेरी बहुत सारी वीडियो है, 32 वीडियो है। आर्ट ऑफ योगा, आपको 1 घंटा डेली रूटीन करना हो तो भी हमारी वीडियो है। प्लस हमारा आर्ट ऑफ लिविंग का भी बहुत सारे टीचरों का वीडियो है। तो आप शैलेश राधड़िया आर्ट ऑफ लिविंग पे चले जाना, तो आपको 1-1 घंटे। तो अभी हम बैठे बैठे, मान लो 5 मिनट में हमें बॉडी को रिलैक्स करना है, तो कैसे कर पाएंगे?
5 मिनट में हमें बॉडी की नाड़ियों को ठीक करना है। तो कैसे करें? तो भाई आप जहां बैठे हो वहां पैर को जमीन पे दबाओ, ऐसे दबाओ, पूरा फास्ट दबाओ। आवाज आएगी जो मेरी, आपकी भी आनी चाहिए, ऐसे दबाओ। तो ये खिल गया। फिर हाथ हिलाओ, ये खिल गया। ऐसे हिलाते हैं तो बॉडी क्या है, वाइब्रेट होने लगती है। फिर गर्दन हिलाओ, तो ये हिल गया। तो अब मैं और सीक्रेट कहता हूं, आपको बहुत आनंद आएगा। आप इन्हें खाली नाभि पे हाथ रखो और जोर से बोलो आ आ आ। अब बिना आवाज किए आ बोलो और हंसो। तो हंसने से भी नाभि हिलती है, आ आवाज करने से भी नाभि हिलते हैं, और एक्सरसाइज पेट दबाने से भी नाभि हिलते हैं। तो हम क्या करेंगे, नाभि का वाइब्रेशन लेंगे, पैर को हिलाओ, हाथ को हिलाओ, गर्दन हिलाओ, मुंह खोलो और बिना आवाज किए आज हंसो। और विश्राम। आंखें बंद कर लो और देखो जो मन भारी हो रहा था ज्ञान की वजह से, कितना अब अंदर चेंज हुआ एनर्जी। अब धीरे से आंखें खोलो। रीढ़ की हड्डी को हमें मसाज देना है। तो पहला है स्ट्रेच, ऐसे जैसे हम कभी बहुत थक गए होते तो ऐसे स्ट्रेच करते हैं। तो ये आलसी स्ट्रेच, बैठे बैठे ऐसे करो, खींचो। अब इसी में आप राइट साइड खींचो, फिर आप लेफ्ट साइड खींचो। ऐसे 5-5 बार, 10-10 बार आपने कर लिया तो पूरी बॉडी खुलने लगेगी, ब्लड सर्कुलेशन होने लगेगा। तो कहीं पे भी दर्द वर्द हो तो निकल जाएगा। तो ये बैठे बैठे हो, चेयर पे बैठ के कर सकते हो, पलाठी लगा के पलंग पे कर सकते हो, कहीं पे भी बैठे हो और काम आ गया। थोड़ा सा कंधे को हिला लिया हमने, फिर लेफ्ट और राइट रोटेट कर लिया रीढ़ की हड्डी को, बैठे बैठे। नीचे देखो, पैर के घुटने के बीच में जगह नहीं रहनी चाहिए, अलाइनमेंट परफेक्ट रहना चाहिए, बैठे बैठे। ये दूसरा स्टेप। फिर धीरे धीरे क्या करो, आगे झुको। हम अक्सर खड़े होके आगे झुकते हैं ना तो बहुत तकलीफ होती है। तो जब भी आप आगे झुको तो पहले घुटने को बेंड करो। अभी तो यहाँ नीचे बैठे हो तो बेंड है, तो बेंड आगे झुकने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे भी झुको, कमर पकड़ो, पीछे झुको और आगे झुको, घुटना छाती को लगा, ऊपर नीचे। इसमें आनंद करना हो तो हंस सकते हो। सांस की लय को देख सकते हैं और विश्राम। अब मान लो किसी को साइटिका का पेन है तो कुछ नहीं करना है, ये एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखो और इसको दबाओ, ऐसे थोड़ी देर दबाओ। ये दूसरा स्टेज हो गया। अब लेफ्ट हैंड को सीधा करो और लेफ्ट हैंड को ऐसे लेफ्ट साइड ले जाओ, ऐसे ले जाओ, और इसको दबाते दबाते लेफ्ट हैंड को और पीछे ले जाओ, ऐसे। तो ये ट्विस्ट भी हो गया, ये पूरा खुल गया। खाली कुछ नहीं किया है तो अभी बहुत कुछ अंदर हो गया। एंड रिलैक्स। दूसरी ओर क्या करे भगवान ने, दो साइड एक बुक तो ये कर लीजिए और ये सारा सारा ऐसे पीछे ले जाए। खाया पिया ही हमें दुख के रूप में भुगतना पड़ता है, समझ लेना। खान पीन की आदत दूसरी सुधार। तो ये हो गया स्ट्रेच। ये जब भी आपको मौका मिले, हमने 3 मिनट किया, ज्यादा नहीं किया। अब एक और स्ट्रेच है, पैर के पंजे नीचे हैं, जैसे मैं ये दबाऊं ना तो उंगलियों को भी दबाना, तो नाड़ियां खुलेगी। ऐसे पैर की उंगलियां और हाथ की उंगलियां ऐसे दबाओ
8 बार दबाओ, 10 बार दबाओ, आपके पास टाइम हो तो 40 बार दबाओ। तो जैसे जैसे दबाओगे पैर खुलता जाएगा, नाड़ियां खुलती जाएगी। और कहते हैं हाथ और पैर में एक्यूप्रेशर के सारे पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो अब एक दो प्राणायाम सिखाता हूं, फिर हम ध्यान में चले जाते हैं। ठीक है, अब मान लो हाथ को ऐसा कर दो, जितनी बार ये मुट्ठी बंद करोगे ना तो उतनी बार क्या होगा, ये यहाँ पे डाइजेस्टिव ट्रैक के सारे पॉइंट्स हैं वो खुलेंगे। तो मुट्ठी बंद करके हमें क्या करना है, ऐसे पीछे ले जाना है जैसे नाव चलाते हो, और हल्का सांस बाहर निकालना ऐसे। ये 10 बार कर लिया ऐसे बैठे बैठे। क्यों, हमारा फोकस क्या होता है, मोबाइल में, लैपटॉप में, कहीं जगह पे, तो ये गर्दन पे सर्वाइकल होता है। तो उसको कैसे ढीला करें, तो एक दूसरा स्टेप से कान कंधे के लाइन में उसको पीछे ले जाओ, मुट्ठी बंद करके। और विश्राम, फिर कंधा कान को, क्योंकि यहाँ पे भी तो कंजक्शन है। फिर बहुत सारी चेहरे की एक्सरसाइज है, कोई ना करो कोई बात नहीं। अभी एक कान जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, गर्भ में पलता हुआ बच्चे जैसा है इसका आकार। तो कान को भी खींच आप हिलाओगे तो पूरी नाड़ियां शरीर की खुल जाएगी। तो रोज गाय के घी, कोपरेल, नारियल तेल कुछ भी हाथ में लेके इसको बड़ा सा मसाज करो और हमिंग करो। और सम्मान दीजिए, विश्राम करें। तभी लेफ्ट हैंड ऐसा करो, लेफ्ट हैंड। अभी हम प्राणायाम करेंगे 2 मिनट और फिर 7 मिनट ध्यान में चले जाएंगे। तो सबको रहना है, मोबाइल बंद करना है, ठीक है ना। रियल योग अभी मैं शुरू कराने वाला हूं। अभी तक तो हमने सुना है, अब प्रैक्टिस में आ रहा है। कितने लोगों को अच्छा लग रहा है, कोई ऐसा मुझे बोल सकता है, दिखा सकता है? ठीक है, बहुत बढ़िया। लेफ्ट हैंड को ऐसा करो और ऐसे घुटने पे रख दीजिए ऐसे, और छाती को कड़क कर दीजिए। अब राइट हैंड की मुद्रा है ये, राइट हैंड की, इसको प्राण मुद्रा कहते हैं। जब हमारे शक्ति की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है, तो ये फीडिंग पॉइंट है। तो क्या करते हैं, ये दोनों नासिका के बीच में पकड़ लेते हैं और नासिका को छूते हुए कपाल पे जहां दोनों बिंदी लगाते हैं वहां पहली 2 उंगली लगा दीजिए। और अब छाती को बाहर निकालो, आंखें बंद कर लीजिए, पूरा फोकस सांस पे, दोनों नासिका से सांस लीजिए। लेफ्ट से धीरे धीरे बिना आवाज किए धीरे से बारीकी से छोड़े। बारीकी से लीजिए, लेफ्ट साइड से। राइट साइड से सांस को छोड़े। कहते हैं मन को स्थिर करना हो तो सांस की गति बदलनी चाहिए। राइट साइड से सांस भरें, पूरी भर, लेफ्ट से छोड़े। लेफ्ट से भरें, राइट से छोड़े। राइट से भरें, लेफ्ट से छोड़े।
किसी का अनम्यूट है, उसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, आप म्यूट कर दीजिए। लेफ्ट से भरें। राइट से राइट से भरें। लेफ्ट से छू। आखिरी बार लेफ्ट से भरें। राइट से छोड़। राइट से भरें। लेफ्ट से छोड़। और विश्राम में चले जाए, कंफर्टेबल बैठ जाए। पाल्टी लगाना चाहते हो, चौकड़ी मार के बैठना चाहते हो तो आराम से बैठ जाए और बिल्कुल शरीर की हड्डी सीधा कर। 7 मिनट हम करेंगे, लेकिन पूरा ध्यान करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए, आराम से कंफर्टेबल बैठ जाए। सोफे पे बैठना चाहते हो तो सोफे पे बैठ जाए। बाकी के लोग अनम्यूट कर दीजिए। फॉलो इंस्ट्रक्शन। आंखें बंद कर लीजिए। जैसे आप टीवी देखते हो, इसी तरह अपने शरीर को टीवी की तरह देखो। कहते हैं हमारे डीएनए में पूर्वज के जीन्स हैं, तो हम यहाँ पे उनकी वजह से यहाँ पे है। इसी तरह इस धरती पे योग ज्ञान पहले से है, तो जिन जिन गुरुओं ने उसको आह्वान किया है, उन सभी गुरुजनों को हम मंत्रोच्चार के द्वारा बुलाते हैं और अपनी जीवन की आगे यात्रा के लिए आशीर्वचन लेते हैं। और फिर लास्ट में प्रार्थना करें। तो आपको बोलना नहीं है, सिर्फ आपको सुनना है। आंखें बंद कर लीजिए 1 सेकंड के लिए और पूरा ध्यान सांस पे ले जाइए। पूरा ध्यान सांस। सांस सांस के मार्ग पे, और जहां पे सांस मुड़ रहा है दोनों आईब्रो के बीच से, वहां पे दृष्टि रखिए। जैसे सिनेमा देखते हैं, टीवी देखते हैं, इस तरह से अपने शरीर को देखिए। शरीर में होने वाली सभी प्रक्रियाओं को देखिए। सांस की लहरों को देखिए। सांस के मुड़ाव को देखिए। सांस के मार्ग को देखिए। जहां सांस शरीर में रुकता है, उस क्षण को महसूस कीजिए, और जहां सांस बाहर रुकता है, उस क्षण को भी महसूस कीजिए। उस क्षण में मन को विलीन करते जाएं, कृतज्ञता मन में भरते जाएं। 3 सूत्र मन में रटन करें कि मुझे इस वक्त 7 मिनट तक हिलना नहीं है। मन को आदेश दीजिए कि मुझे 7 मिनट तक कुछ नहीं चाहिए। और बुद्धि को आदेश दीजिए कि अपनी आइडेंटिटी भूल जाए। मैं अभी कुछ नहीं हूँ। आई एम नोबडी, आई एम नथिंग। और धीरे धीरे सांस पे दृष्टि रखें। एक भी सांस आपको पूछे बिना अंदर न जाए, न ध्यान के बिना बाहर निकले। पूरा दृष्टि। सदाशिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मत्श्रीगुरुपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्यभ्यन्तरशुचिः। आवाहनम् नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं
शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महन्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तं त्रोटकं वार्तिककार्यमन्यात् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः यद्वारे निखिलानिलिम्पपरिषत् सिद्धिं विदते निशं श्रीमत्श्रीलसितं जगद्गुरुपदं नत्वात्मतृप्तिं गतः लोकाज्ञानपयोदपाठनदुरं श्रीशङ्करं शर्मदं ब्रह्मानंद सरस्वती गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयम् आवाहनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। स्नानं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वस्त्रं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। चन्दनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अक्षतां समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। धूपं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। दीपं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नैवेद्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ताम्बूलं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीफलं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आरार्तिक्यं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरार्तिकं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पाञ्जलिं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। मन में एक संकल्प कीजिए, कोई भी इच्छा हो या जिस पीड़ा से आप मुक्त होना चाहते हो उसे याद कीजिए। अपने इष्ट देव को, अपने गुरुदेव को, जिसमें आपकी श्रद्धा हो उनको समर्पित कीजिए और मेरे साथ साथ मन में दोहराते जाएं, प्रार्थना करते हैं। जगत के हर व्यक्ति के जीवन में अचल भक्ति, अटूट श्रद्धा, अपार मुक्ति, अनंत शक्ति, गहन युक्ति, आरोग्य एवं समृद्धि की पुष्टि हो। इन सबके जीवन से असुरी तत्व का विनाश हो, सत्व का उत्थान हो। इसी संकल्प पूर्ति हेतु मैं उपलब्ध हूँ, मेरा सदुपयोग करें। मन ही मन और एक प्रार्थना कीजिए, ये ज्ञान, प्रेम और भक्ति मेरे जीवन में, मेरे पारिवारिक जीवन में और मेरे सामाजिक जीवन में फैले। सबको आरोग्य, समृद्धि और मुक्ति की प्राप्ति हो, सबका कल्याण हो। गहरी सांस भरें। सांस छोड़ते छोड़ते शरीर का शुक्रिया अदा करें। शरीर के साथ देने वाले माता पिता का शुक्रिया अदा करें। इसके साथ अपना जिससे के साथ संबंध है उस संबंधियों का शुक्रिया अदा करें। इस ईश्वर की देन है, ईश्वर का शुक्रिया अदा करें और धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलें। जय गुरुदेव। विकास जी, तो जिनको भी आप अब आगे बढ़ना हो तो विकास जी का संपर्क कर लेना। कैसा लगा जो अभी आप बता सकते हो? ये तो शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अच्छा। अभी तो ऐसा कर रहा है, मतलब बोलने का मन ही नहीं कर रहा अभी। दया चौधरी जी, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस। वाकई ऐसा लगा जैसे एक अलग सी दुनिया में, बड़ी शांतिपूर्ण जिंदगी लग रही थी। ऐसे लग रहा था कोई पास्ट फ्यूचर कुछ नहीं नजर आ रहा था। बहुत ही अच्छा। आपके साथ साथ हम चलते जा रहे थे, ऐसे लग रहा था कहाँ से कहाँ पहुंच रहे, एक नया रास्ता था। इसी को मिलन कहते हैं। ये अंदर का जो गल है ना, ये योग का शब्द बहुत लोग आसन तक और एक्सरसाइज तक सीमित कर दिए। ये बहुत ही अंदर है, अंदर की यात्रा है। और जैसे अच्छा लॉयर बनने के लिए आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसी तरह अंदर रहने के लिए आपको अच्छी सी प्रैक्टिस और समय भी देना पड़ेगा। ठीक है। और ये अंदरूनी खुशी है, इसको शब्दों से बयान नहीं कर सकते। हाँ, ये तो एहसास हुआ है। हाँ, और ये एहसास हम आर्ट ऑफ लिविंग के हर एक शिविर में देते हैं। आप सबको मैं आमंत्रित करता हूँ, हमारे आर्ट ऑफ लिविंग में हैप्पीनेस प्रोग्राम में आइए। वहाँ पे आप सुदर्शन क्रिया सीखिए, सहज समाधि मेडिटेशन में आइए, घर पे ऐसे मेडिटेशन करने की कला सीख जाइए।
हमारे योगा प्रोग्राम में आए, अलग अलग तरीके के योगा के शिविर जो है उसमें आप ज्वाइन हुए तो अलग शक्ति प्राप्त कीजिए। तो ऐसे बहुत सारे डेवलपमेंट के हमारे अंदरूनी डेवलपमेंट इसको विद्या कहते हैं। और विद्या के लिए अगर खर्च करना पड़े कोई बात नहीं, खर्च कीजिए और आइए। और गुरुदेव तो है साक्षात, बस चैरिटी करने बैठे हैं। तो आपको बहुत अच्छा लगा, एक अलग सी फीलिंग आई। देखो ये इन अच्छे लोगों के साथ में है, ये फायदा है। गोयल साहब हैं, विकास जी हैं, ये लोगों ने पूरे एफर्ट्स करने के बाद ये अच्छा प्रोग्राम आपसे मुलाकात हुई। तो आर्ट ऑफ लिविंग का मैंने कोई प्रोग्राम अटेंड नहीं किया था, तो एक दो बार ऐसे ही कहीं गुरु जी से मुलाकात हुई थी किसी फंक्शन में, लेकिन प्रोग्राम अटेंड नहीं किया। तो ये सारा डिटेल मैंने पहली बार ही देखा, इसका एहसास हुआ। बहुत वाकई बहुत है, वी आर लेट रादर। तो शैलेश जी आपका जो है ये प्रोग्राम तो हमारे लिए, सब जिन्होंने भी देखा है, हमारे लिए हर एक के लिए बहुत यूजफुल है। और लाइफ की रियलिटी यही है जो हम मिस करते हैं। अभी एक कोविड के कारण बहुत अच्छा हो गया कि अब हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं, पहले तो हम ऑफलाइन करते थे। हाँ, जब नॉर्मल सिचुएशन आएगी लोगों को भी अडॉप्ट करना पड़ेगा, हाइब्रिड सिस्टम रखना पड़ेगा, और अच्छा है। आप जरूर आप लोग अटेंड कीजिए ऑनलाइन, विकास जी आपको हेल्प करेंगे। बहुत अच्छा। सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था, एक एडवोकेट का क्वेश्चन आया है सर, मैं आपसे पूछूं क्या? हाँ जी बोलिए। सर जैसे इस कोविड के टाइम में लास्ट 2 या 3 महीने में हमने देखा कि लोगों के जो लंग्स थे, फेफड़े बहुत इन्फेक्टेड हुए, और डॉक्टर्स ने बोला कि भाई इनको आप अपने फेफड़ों को मजबूत बनाएं। तो सर उसके लिए कोई विशेष प्राणायाम या मेडिटेशन होगा या कोई कॉमन प्रोग्राम होगा? क्योंकि ज़्यादातर लोग अब अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग और ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए बात करते हैं बार बार, तो ये कितना उसमें सहायता करेगा, कितना कारगर होगा? सर कृपया इस पर प्रकाश डालें, धन्यवाद। एक आप लंबे गहरे यौगिक ब्रेथ लीजिए, यौगिक ब्रेथ यानी पूरे फेफड़े की कैपेसिटी फुलाते जाए फुलाते जाए फुलाते जाए और सिकुड़ते जाए। ऐसे 11 बार या 21 बार अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपकी लंग कैपेसिटी मजबूत होगी, नंबर 1। और जैसे हमने ये जो प्राणायाम करवाया है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये अगर 20-20 3 आपने कर लिए अलग अलग तरीके से, या ऊपर से नीचे तक का ही 20-20 का 3 राउंड कर लिया, तो भी आपके एक ये फेफड़े नए रिज्यूनेट हो जाएंगे। उसके साथ साथ मन भी शांत होता चला जाएगा। और आप अनुलोम विलोम कीजिए, जब तक आप सुदर्शन क्रिया ना सीखो तब तक ये आप प्रैक्टिस करो, और सुदर्शन क्रिया फिर आगे की यात्रा में आपको हेल्प करेगा। तो बहुत जरूरी है कोविड के टाइम में। दूसरा, शरीर का जो हमें डर बैठ गया है ना, वो डर निकाल दीजिए। डर से ही हमारी जो मेडिसिन है ना उसकी असर नहीं होती है। अगर मेडिसिन की भी असर हमें पर्याप्त तरीके से करनी हो तो ये डर निकालना पड़ेगा। और डर निकालने का एक ही तरह है, मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन। और आपको मेडिटेशन सीखना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। हमारे मार्केट में बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे सब मिल जाएगा, इवन गुरुदेव का मिल जाएगा। लेकिन आप अपने खुद के साथ रहने की कला एक बार सीख लो, सीख लो। और एक बार वो सीख जाने, सीखने के लिए कुछ नहीं चाहिए, 3 दिन 2 घंटा चाहिए, आराम से सीख लोगे। वो टीचर भी इतने मधुर होते हैं, इतने अच्छे ऐसे अनुभव करा के जाते हैं। आप शैलेश जी शुरू से ही ऐसे ही थे या आर्ट ऑफ लिविंग वाले प्रोग्राम में शामिल हुए तब से ऐसे बने नेचर? मैं जैसे आप हो वैसे ही मैं था। धीरे 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 प्रैक्टिस करते करते ये रूप आया है। और मैं यहाँ पे सिखाने के लिए नहीं बैठता हूँ, मैं खुद सीखने के लिए बैठता हूँ। नहीं, गुरुजी भी वो इतने सॉफ्टली बोलते हैं, ऐसे लगता है कि कहीं भी उनको कभी भी गुस्सा नहीं आता होगा। हाँ, पर वो कई बार तो गुस्सा भी रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार ऐसे लगता है कि कहीं जरूरत भी होती है कई जगह। हाँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कोर्ट में।
कई बार कई लॉयर को एक ही रिपीट करता, एक लॉयर रिपीट कर रहा है, मान लो एक आर्ग्यूमेंट को बार बार करता है, और हम ये कहते हैं दैट्स ऑल वी हैव हर्ड यू, तो उसके बाद भी नहीं होता, फिर हम थोड़ी सी ऊंची अपने वॉल्यूम को थोड़ा ऊंचा करते हैं वॉइस को, जब वो समझ जाते फिर चुप हो जाते हैं। तो कई बार ऐसा लगता है चाहे वो आर्टिफिशियल तरीका ही है, हमें अपना वॉल्यूम इसलिए बढ़ाना पड़ता है कि दूसरे को चुप करें। तो दैट हैज इन फैक्ट दैट बिकम्स लाइक इंस्ट्रूमेंट कि इससे ठीक हो जाता है, और वो हैबिट भी गलत हो जाती है फिर कि वही तरीका, और वो एक पे एप्लीकेबल नहीं होता, बहुत बार होता है। तो मैं यहाँ पे आपको हमें सुधार करना चाहिए था अपने का, या लॉयर को समझाना चाहिए था कि इस तरह से? नहीं, मैं बात सुनो, पेशे में जो कर रहे हो करो, लेकिन उसके बाद जो आपने चढ़ा उतार किया है, टॉन में किया है, उसकी जो असर है हमारे सिस्टम में पड़ी हुई है, उसको नलीफाई करना वो अलग विधि हो गई। वो तो चेंज हो जाता था। मैं कोर्ट में कभी भी करती थी, अगर किसी में मेरे हाई वॉल्यूम हुआ है या किसी एक पर्टिकुलर से, इमीडिएटली आफ्टर दैट आई यूज्ड टू फील पे कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, दैट वाज नॉट गोइंग टू चेंज मी एट ऑल। हाँ, ये इसको नलीफाई करना आ जाए बस। क्रोध करना गलत बात नहीं है, एक क्रोध दिखाना होता है और एक क्रोध करना होता है, ये दोनों में फर्क होता है। हाँ, वो दिखाने वाला ही था, वो अपने ऊपर भी असर नहीं डालता था ज्यादा। हाँ, कोई बात नहीं, तो वो चलता है। व्यवहार तो देखो, व्यवहार अगर आप प्रेम से कर, वो बिजनेस अगर प्रेम से करोगे तो नहीं चलेगा। जहाँ व्यवहार करना है वहां गुरु जी कहते हैं व्यवहार दिमाग से ही करो और प्यार दिल से करो, बस दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंशिएट करो, बैलेंस करो, इसी को आर्ट ऑफ लिविंग कहते हैं। अगर भाव उठ गया है और उसकी हमें लॉन्ग टर्म हानि बन रही है, तो उस भाव को कैसे रिलीज करें, ये टेक्निक भी सीख जाओ। ये सांस के जरिए हो सकता है। भाव उठा, सांस बदला, आप सांस बदलोगे भाव बदल जाएगा। हाँ, बदल, ये तो थोड़ा थोड़ा आता है हमें, है? हाँ, इसमें ये टेक्निक तो कई बार प्रैक्टिकली करते हैं तो कुछ अपने तरीके से भी सीखता है ऑटोमेटिकली। हाँ, तो अगला प्रोग्राम में मिस्टर गोयल से और मिस्टर वर्मा से कहूंगी कि प्रोग्राम दूसरे टॉपिक पे आप कब करेंगे हमारे लिए, सबके लिए? आप जैसे मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, अब अलग सा प्रोग्राम आपने लॉयर्स के लिए करना है। ये तो जनरल 3 दिन का हमारे साथ बैठिए, 2-2 घंटे वाला प्रोग्राम, ये विकास जी आपको समझा देंगे। उसमें जो मिलने वाला है ना, वो ये शब्दों से नहीं मिलने वाला। गुरु जी क्या देना चाहते हैं वो आपको उस दिन बैठोगे ना तभी पता चलेगा। जैसे आज बैठे आपको मिल गया, वैसे वो 3 दिन बैठोगे तो क्या आधा पौना घंटे में इतना फर्क पड़ जाता है। तो उस गुरु के सानिध्य में हम 6 घंटा बैठे तो जीवन बदलने वाला है, ये पक्की बात है। यहाँ पे जो आता है वो वापस नहीं जाता है। ठीक है, जैसा आता है वैसा वापस नहीं जाता है, बदल के जाता है, ये गारंटी। परसेंटेज अलग होती है। आई एम द एग्जांपल। आपका प्रेजेंटेशन था वो बहुत ही अच्छा, वेरी इम्प्रेसिव, वेरी गुड, जिसमें आप अब हमारा कहीं मन इधर उधर नहीं जा रहा था किसी का भी, सब फोकस होके एक ही पोज में ऐसे था, कहीं कोई ऐसी नहीं थी पैर पूरे हिलते रहे, हाथ हिल रहा हो, कुछ नहीं था, बिल्कुल ही स्टेबल थे हम सब। बीच बीच में कैमरा से सबका पता लग रहा था, हमें खुद अपना भी लग रहा था, दूसरों का भी पता लग रहा था। नहीं तो इतना लंबे टाइम आदमी हिलने लगता है, कहीं ना कहीं इधर उधर देखने लगता है। बहुत अच्छा जी भैया, आपने कुछ क्वेश्चनों का आंसर अपनी बातों में अपना के दे दिया बहुत अच्छे से, क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न थे कि लोगों के मन में डर था या कुछ मन पिछले काफ़ी टाइम से ठीक नहीं था, तो आपने उसके आंसर्स भी दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा विनोद कुमार गोयल जी, जो हमारे ऑल इंडिया लॉयर्स फोरम के चेयरमैन है, वो आपका और हमारे जस्टिस दया चौधरी मैम का धन्यवाद करेंगे, और हमारे जो ऑल ओवर इंडिया से जितने भी लॉयर्स कनेक्ट हुए हैं उन सभी का धन्यवाद करें। विनोद कुमार गोयल।
Thank you. Giving the vote of thanks, I want to say something about the LF and our program. During this pandemic, we organized uncounted webinars on different topics in the interest of legal professionals, law students, and public at large. We have organized special knowledge series of meditation and try to handle mental stress of advocates. Except this, we have also organized webinars on the global legal studies with the eminent speakers from Oxford Universities, UK, and Harvard Law Schools, USA, with the help of our international coordinator, Ms. Pragya Parijat Singh. We have also organized academic sessions on the different topics for students across the world. And before giving today's vote of thanks, I, on behalf of All India Lawyers Forum, firstly, I would like to express my gratitude towards our eminent chief guests and keynote speakers who have been precious part of our previous webinars. Honorable Justice Deepak Misra, Honorable Justice Mr. P.R. Gavai, Honorable Mr. Justice L. Nageswar Rao, Honorable Mr. Justice Indra Banerjee, Honorable Mr. Justice A.K. Sikri, Honorable Ms. Justice Gyan Sudha Misra, Honorable Mr. Justice Korean Joseph, Honorable Mr. Justice Siddharth Mridul, Honorable Mr. Justice Rajiv Bhalla, and Mr. Vikramjit Banerjee, Learned Additional Solicitor General, Ms. Madhvi Diwan, Learned Additional Solicitor General, Ms. Aishwarya Bhati, Learned Additional Solicitor General, Mr. Jayant Sood, Learned Additional Solicitor General, Mr. Aman Lekhi, Learned Additional Solicitor General, Mr. Chetan Mittal, Learned Additional Solicitor General, Dr. Abhishek Manu Singhvi, Senior Advocate and Member of Parliament, Mr. Manish Tiwari, Prominent Lawyer, Supreme Court of India, Mr. KTS Tulsi, Senior Advocate, Supreme Court of India and Member of Parliament, Dr. Salman Khursi, former Law Minister, Mr. Gaurav Banerjee, Senior Advocate and Barrister, Mr. Venkat Ramani, Senior Advocate, Ms. Meenakshi Arora, Senior Advocate, Mr. Siddharth Luthra, Senior Advocate, Mr. Arijit Prasad, Senior Advocate, Mr. Atul Nanda, Mr. Senior Advocate General of Punjab, Mr. Satish Verma, Advocate General Chhattisgarh, Dr. Manish Singhvi, Senior Advocate and Additional Advocate General Rajasthan, Dr. Pawan Duggal, Cyber and Law Expert, Mr. Rajendra Pal Gautam, Advocate and Minister from the Government of NCT of Delhi. Besides this, I want to say the best and beautiful things cannot be seen, even touched. It can be felt by heart only. Thanks is the one word among them. So I, Vinod Kumar Goyal, Chairman, All India Lawyers Forum for and on behalf of our all team and our National Executive, extend a hearty vote of thanks to our today's chief guest, retired Honorable Justice Daya Chaudhary, Judge, Punjab and Haryana High Court, and our keynote speaker, Mr. Sailesh Bhaiji, Senior Art of Living Yoga expert. Respected sir, you spoke very well on the today's topic, role of yoga in human life during COVID-19. And we came to know that yoga is the only way to connect yourself and also to connect with the God. So I'm very much obliged to you for sharing such valuable and unique information with our participants and spare your valuable time for us on our one call. And a very special thanks to all participants of the today's webinar. And finally, I would like to give special thanks to our all strong pillars of All India Lawyers Forum from the different states, our co-chairman, Mr. Vikas Verma, our National Executive President, Mr. Abhinav Singh, our Vice President, Ms. Rasmi Bansal, AOR Supreme Court, our Secretary, Vikrant Dhama, our different state presidents. And I would like to share one more important thing, that the All India Lawyers Forum is a national voice of legal fraternity, and its membership is free and available for all law students and lawyers. So you can join us. You can take the membership from our websites, that is allindialawyersforum.com. Thanks. And
very much obliged to Honorable Justice Daya Chaudhary and Shailesh Bhai ji. Thank you very much, and I hope so कि बिल्कुल फिर मिलेंगे और बहुत जोश के साथ मिलेंगे और एक अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, Shailesh bhaiya.